All right. I'm so glad I made it to class, even if others didn't. So, um, we we were discussing in the last class the concept of Chitrakoot, and in the last class we did a lot of revision and went over a lot of thoughts. But the main thing I wanted you guys to carry away was what is the nature of Ganga or Mandakini. And the main nature of Ganga, I explained, is that of course it's water. Of course, the water has the character that it can purge your um, misdeeds or bad deeds or bad karma. And the main character of that water is that it is flowing. And I explained to you that the flow of this Ganga is only possible when the flow of Anurag is happening. So that means when your devotion and your love for God is in this constant ebb, it's dynamic, it is not stagnant, then the flow of the river is possible. And the only time this love for the divine that you experience, the only time it is ebbing and flowing, it is dynamic, is when there is satsang, when there is katha. When there is katha, then the otherwise the emotion is pretty stagnant, it is pretty constant, hopefully, but it is not dynamic. But when katha happens, there are new ways in which you start to embrace the divine. There are new ways in which you start to appreciate the divine. There are new ways there is new light in which you start seeing the divine. And therefore, the only time this anurag, which is love without expectation for the divine, has this character of fluidity and movement is when there is katha. Hopefully, this was taken away by everybody from the last class. Now, so Katha Rupi Ganga, Ganga that is in the form of Katha, only then it is Ganga. Of course, the Katha has to be from Bhagirathi's tapasya, it has to be from uh, Lord Shiva's jata, it has to be from Brahma's kamandal, it has to be from Lord's holy divine feet. But the flow of Ganga is actually Katha. तो मंदाकिनी जो बह रही है वो उसको गंगा स्वरूप माना और गंगा के ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स माने और चित्रकूट में भगवान तब वास करेंगे, यानी कि हमारे चित्रकूट में, हमारे चित्त में भगवान तब वास करेंगे. गॉड विल ओनली अराइव हियर इन आवर hearts when there is Chitrakoot. Chitrakoot will only happen when there is Mandakini. Mandakini will only happen when there is Katha, when there is Satsang. So Chitrakoot ki do defining characteristics. One is the Mandakini, which I explained. The other is a mountain. So the mountain here is जो तुलसीदास जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो बोला कि ये जो माउंटेन है, ये माउंटेन क्या है? ये माउंटेन है संत का. क्योंकि गंगा कहाँ से बहती है? पहाड़ से बहती है ना? सो जो माउंटेन का प्रेजेंस है वो है संत का प्रेजेंस या गुरु का प्रेजेंस. तो जब गुरु और संत रहेंगे तभी मंदाकिनी बहेगी. ठीक है? जब गुरु और गंगा दोनों साथ में रहेंगे
कथा होगी तभी वो चित्रकूट बनेगा, अदरवाइज वो चित्रकूट नहीं बन सकता। तो दो चीजों का आपके हार्ट में, हृदय में, दो चीजों का होना जरूरी है। एक तो गंगा, लगातार भगवान की कथा चलती रहे, और दूसरा कथा के साथ संत भी साथ में रहे। क्योंकि खाली अगर आप किताब से रामायण पढ़ेंगे तो उसमें कोई रस नहीं आएगा, है ना। आप पूरी कहानी पढ़ लीजिए, इफ यू रीड द एंटायर स्टोरी, even then you will feel no anurag for God. God will not become desirable from reading Ramayana. Hmm? Does he become desirable from reading Ramayana? You can read the whole story of Ramayana. You will only find in your head questions as to why is Ram God? Seems like a normal person. Why is Ram God? So, कथा खाली बिना संत के चित्रकूट नहीं बनाती। और संत बिना कथा के, अगर शांत संत बैठा हुआ है, somebody was saying, मैंने कहा सत्संग सुनना चाहिए, तो बोले कि हम आ रहे हैं ना आपसे मिलने के लिए। मैंने कहा आ तो रहे हो, when you come to my space, it doesn't mean that I'm always doing satsang. I'm not always doing satsang. You can come, you can sit in my presence, you can eat food, you can go, of course it will change you to the extent। एक मैंने कहानी शायद इस क्लास में नहीं सुनाई, दोबारा सुना देती हूँ। एक बार हमारे यहाँ एक बहुत सिद्ध पुरुष आज के जमाने में भी है, जो कि दृष्टिहीन है। क्या नाम है पुलकित? सर हिला रहा है इतनी जोर से। नमस्ते, आई एम सॉरी, मेरे को उनका नाम नहीं याद, बट मैंने उनको बहुत देखा है। नाम किसी को याद? अच्छा चलो, होमवर्क, नाम याद करके बताना। तो दृष्टिविहीन है, और उनको, मतलब, ही इज जस्ट अ मिरेकल ऑफ गॉड। तो जब वो थोड़ा छोटे थे, तो लोग अ, द्वारका जा रहे थे। तो छोटे थे, दृष्टिविहीन थे, बाकी लोग दर्शन करने जा रहे थे, तो उन्होंने कहा मुझे भी ले चलो। तो अब संत हैं तो उनको मना तो किया जा नहीं सकता, ले गए लोग। पर एक आदमी ने थोड़ी सी जुर्रत करके पूछ ही लिया, आपको तो दिखता नहीं है, हम सब ने दर्शन किए, आपने क्या किया? बहुत इम्पोर्टेंट कथा इसलिए है, मतलब इट्स नॉट अ स्टोरी फ्रॉम द पुरानास, बट आई थिंक इट्स वेरी रेलेवेंट, बिकॉज हिज आंसर वाज सो ब्यूटिफुल। ही सेड कि मैं तो देख नहीं सकता, मुझे तो दिखता नहीं है, पर जिसके सामने आया हूं वो तो देख सकता है ना। मैं दर्शन करने गया था, मुझे देखना इतना जरूरी नहीं है, उसको मुझे देखना ज्यादा जरूरी। मुझे दर्शन हो ना हो, हम लोग वीआईपी लाइन में दर्शन करते हैं, कभी कभी आगे तक जाके दर्शन करते हैं, अंदर तक जाके दर्शन करते हैं, हमें लगता है वाह बहुत अच्छा काम किया। क्या पता भगवान की नजर दूर दरवाजे पे खड़े किसी भक्त के ऊपर हो, उसकी नजर किसके ऊपर है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। तो सो जब कोई आता है या जब मैं कहीं जाती हूँ, तो गुरु की दृष्टि का बहुत महत्व है। गुरु की दृष्टि या भगवान की दृष्टि किसके ऊपर पड़ती है, वो चेंज होता ही होता है, उसके अंदर बदलाव आता ही आता है। मगर वो सत्संग नहीं है, वो सत्संग नहीं है। सत्संग वो, जो आप बैठ के चर्चा करो भगवान की, वो सत्संग। सो व्हेन somebody सेज हाँ हम तो मिलने आ ही रहे हैं, चाहे क्लास करे ना करे, हमारे पास तो 4 दिन होंगे साथ में रहने के लिए, वो बात अलग है। वो सत्संग नहीं, दृष्टि है पर सत्संग नहीं। या सोना, थॉट्स अराउंड दिस?
know if I have anything to add. Sorry? I don't have anything to add right now. No, but see, when you come here, of course, change happens, right? Mhm. Yeah. But it doesn't necessarily transform into love for God, does it? That love for God will only happen if I'm sitting and if I'm talking about God. Anurag does not increase. You may change, you may grow, you may transform, but anurag does not happen when you are necessarily in the presence of the teacher. Yeah, Pulkit, you were there here for a good whole month. Of course, you will change after that, but you may not increase your quotient of anurag. Does that make sense? And also, I Those of think you. people So sorry, around beta. you, and I think also people around you change. I didn't understand that. Sorry, what did you say? And also, like people are around you change, like who you hang out with or who you have a relationship with, and like physically. Like that's what happened with me when I was with you. Like when I came back, like I got a filter. Like I had a huge group, but now, is it huge? Sorry, I can't hear you. I said you become alone after that. True, that happens. Like sometimes purging will happen, nonsense will fall off. Of course, all those changes will happen when the divine is looking at you, when a guru is looking at you, when that drishti penetrates, when that agni flows, changes will happen. Purging will happen. Like Mrinalini will know. हम लोग जब मैं कैलिफोर्निया जाती थी, अब तो मैं बड़े साल से गई नहीं, पर जब मैं कैलिफोर्निया जाती सब बच्चे बीमार हो जाते थे. All kids in all families will fall sick, one after the other, or one way or the other, or somebody other, because purging will happen. Very good, Ram Bhadracharya. So purging will happen, and that that will manifest in one way or the other. But that does not create Chitrakoot. So Sant in isolation of the Katha does not create Chitrakoot. The quality of Chitrakoot is that Chitrakoot has to have Mandakini flowing. And then Lord Ram will come and reside there. So Chitrakoot, Mandakini without the Sant, अभी बताया मैंने, आप कहानी किताब से पढ़ लो, तो क्या प्यार आएगा, अनुराग आएगा? नहीं आएगा. और संत बिना कथा तो चेंज तो आएगा, मगर अनुराग फिर भी नहीं आएगा. और जहां अनुराग नहीं आएगा, वेयर देर इज नो अनुराग, देर इज नो राम. वहां भगवान नहीं बैठेंगे. जहां अनुराग नहीं होगा, वहां भगवान नहीं बैठेंगे. तो उसके लिए उन्होंने कहा चित्रकूट बना लो अपने मन को और भगवान अंदर आ जाएंगे. इसका मतलब दो चीजें होनी चाहिए, एक संत होना चाहिए और दूसरा कथा होनी चाहिए. जब ये दोनों रहेंगे तो भगवान आ जाएंगे. ठीक, एवरीबडी विद मी. जो हमने चित्रकूट की बात की, पूरी बात का निष्कर्ष यही है कि एक संत का होना सामने और दूसरा कथा का होना सामने चित्रकूट बनाता है. और जब ये कथा चलती है और अनुराग बढ़ता है, वो ही चित्रकूट का सही सिंबोलॉजी. अब ये चित्रकूट में हमने सुना मंदाकिनी, और हमने ये सुना कि मंदाकिनी इन चित्रकूट इज इक्वल टू गंगा. अगर किसी को ज्योग्राफी मालूम हो इंडिया की, if somebody is aware of the geography, then you will realize गंगा का जो पाथ है वो हिमालय से चल के उत्तराखंड से नीचे आके उत्तर प्रदेश से बिहार जाके, है ना, बंगाल में खत्म हो जाती है गंगा. और चित्रकूट किधर है? एनीबॉडी? चित्रकूट है मध्य प्रदेश में. और मध्य प्रदेश में तो गंगा जाती ही नहीं है, तो मंदाकिनी को गंगा क्यों बोला गया?
एनीबडी? इसके पीछे भी एक कहानी है। क्या कहानी? हमारे यहाँ जो सतीत्व का प्रति सती सती मतलब सती का मेन मतलब वर्ड का मतलब जो सत्व के साथ जुड़ी हुई हो। सत्व सत्य के साथ सत्व के साथ जुड़ा हुआ जो इंसान हो उसको सती बोल। और सत्व के साथ जुड़ा रहना मतलब कि धर्म के साथ जुड़ा रहना। या सत्व के साथ जुड़ा रहना, द अल्टीमेट ट्रूथ, यानी कि धर्म के साथ जुड़े रहना। सो जो हमारे यहाँ एपिटम है सती का, सत्व का, कौन है पता है किसी को? हु इज द एपिटम, who's known as the biggest sati? Is it same as Rani Sati Dadi? हम्म हम्म Rani Sati जी? रानी सती तो जी तो वो तो सती हुई, सत्व का प्रतीक है। हाँ, ओ, नहीं, माता सती भी नहीं, पार्वती माता पिछले जन्म में सती का रूप थी, वो भी नहीं। और कौन? हमारे यहाँ अनुसुईया माता हुई, महर्षि अत्रि की पत्नी थी, कपिल मुनि की बहन है। कपिल मुनि और माता अनुसुईया भाई बहन। और कपिल मुनि की पत्नी कौन? एनीबडी? नो? ओके, गूगल इट। चलो चलो गूगल करो। गूगल नहीं बता रहा है। I think it says Devahuti ji. वेरी गुड। और कोई आंसर? धृति, वेरी गुड। So just, I think it's a good exercise. One day you should write down all the names of all the rishis and like draw a family tree or something. We should do that. And of course with their achievements and everything. So Anusuya Mata, what is the importance of Anusuya Mata? She is the epitome of Satitva. जो सती धर्म है, जो पति धर्म है, उसकी परिकाष्ठा, उसकी एपिटम इज माता अनुसुईया। और एक बार क्या हुआ, नारद जी तो आ, हमेशा धर्म और अनुराग बढ़ाने के लिए ही काम करते हैं। सो एक बार नारद मुनि ने माताओं को, सरस्वती माता,
पार्वती माता और लक्ष्मी माता, माताओं को बोला कि अनुसुईया माता का सती धर्म इतना अच्छा है, इतना प्योर है, इतना पवित्र है, इतना पावन है कि वो लोहे के चने भी अगर देंगे उनको तो वो भी पका के और परस सकती हैं। ऐसे हमारे यहाँ कहावत है ना, लोहे के चने चबाना। तो वहां से आई है एक्चुअली, कि नारद मुनि ने उपमा दी थी कि लोहे के चने अगर माता अनुसुईया को दिए जाएं तो वो लोहे के चने भी पका के आपको खिला सकती हैं। इतना उनके धर्म में, इतना उनके सतीत्व में शक्ति है। इतनी शी इज सो पावरफुल, एंड बिकॉज ऑफ हर सतीत्व शी इज बिकम सो गिफ्टेड दैट कि वो लोहे के अगर चने दीजिए तो वो भी वो पका के खा सकते। तो सारी माताओं को थोड़ी सी जेलसी हो गई। अब जेलसी हो गई तो बिना प्रूफ के तो किसी को कुछ बोल नहीं सकते। हम्म। तो उन्होंने कहा अपने अपने रिस्पेक्टिव कॉन्सोर्ट्स को, शिव जी को, नारायण को, ब्रह्मा जी को, कि आप जाके ये अनुसुईया के सतीत्व की परीक्षा लीजिए, गो टेस्ट इट। तो काफी मना करने पर भी जब वो नहीं मानी, और समटाइम्स समथिंग जस्ट अर्क्स यू एंड इट जस्ट गेट्स स्टक, तो उनके अंदर मन में ये रह गया कि ये तो परीक्षा होनी चाहिए, ऐसे कैसे नारद जी ने बोल दिया, बिना परीक्षा के कैसे बोल दिया, परीक्षा होनी चाहिए। तो जब वो नहीं मानी तो तीनों देव उनकी बात मान के गए और अनुसुईया माता की परीक्षा लेने गए। अनुसुईया माता और अत्रि ऋषि बहुत साल तक एक साथ थे और उनके कोई बच्चे नहीं थे, और वो बच्चों के लिए बहुत तपस्या करते थे कि अच्छे बच्चे हो जाएं। तपस्या चली रही थी, तब ये तीनों देव आए और सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने कहा, भिक्षा भिक्षा के ये ब्राह्मण के रूप में आए और भिक्षा लेने आए, भिक्षा माता भिक्षा दीजिए। और भिक्षा देने के लिए उन्होंने कंडीशन रखी कि हम तभी भिक्षा ग्रहण करेंगे जब आप निर्वस्त्र, बिना कपड़ों के हमें भिक्षा देंगे। अपने मूल स्वरूप में भिक्षा दीजिए, तब हम भिक्षा ग्रहण करेंगे। तो अब अगेन, सतीत्व मतलब एपिटम ऑफ सतीत्व मतलब धर्म से अलग नहीं है वो, तो धर्म पालन जरूरी है। अगर कोई भिक्षा देने लेने आया है तो भिक्षा देनी पड़ेगी। तो माता ने क्या किया, जो वो रोज सुबह अत्रि ऋषि के पांव धोती थी। पुराने जमाने में पांव धोने पड़ते थे क्योंकि लोग बाहर नंगे पांव चलते थे। तो वैसे चलना तो आज के जमाने में भी नंगे पांव ही चाहिए, बट एनीवेज, सो पाँव धोती थी और वो धो जो पात्र था ना पाँव धोने का, वो वहीं रखा हुआ था। तो उन्होंने वो चरणामृत से उनके ऊपर छिड़काव किया, तीनों के ऊपर, और तीनों, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीनों बच्चे के रूप में आ गए, बिल्कुल दूध पीते बच्चे के रूप में आ गए। और फिर उन्होंने अपने वस्त्र उतार के उनको स्नेह पान कराया, दूध पिलाया तीनों को। अब वो दूध पिलाया, खिलाया, बैठाया, सेवा की। वहां पर दिक्कत हो गई क्योंकि पार्वती माता, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, बच्चा पति कहाँ गए, पति तो बच्चे हो गए, अब क्या होगा। तो तीनों माताएं आई और तीनों माताओं ने, जब माता आई तो ऑफ कोर्स अनुसुईया माता ने उनकी उपासना की, पूजा की और पूजा करी। और
माताओं ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे पतियों की जो गलती है आप उसको माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए और इनको अपने पुराने रूप में वापस भेज दीजिए। तो माता ने बोला और आपको हम वरदान देंगे। तो अनुसुईया माता ने बोला ठीक है, मुझे आपके पतियों के जैसे तेजस वाले पुत्र चाहिए, बच्चे चाहिए। आप अगर उनका वरदान हमें दे दें तो मैं आपके पतियों को वापस ठीक कर दूं। तो उनको ऐसा वरदान मिला कि ऐसे तेजस वाले तेजस्वी अ, बच्चे होंगे माता अनुसुईया के। और 3 बच्चे हुए माता अनुसुईया के। एक सोम, चंद्रमा। चंद्रमा came from माता अनुसुईया एंड उनमें तीनों के गुण है। नारायण का पोषण का गुण है, सुंदरता का गुण है, ब्रह्मा जी का क्रिएशन का गुण है, इंट्यूशन का गुण है, और भगवान महेश का भक्ति का गुण है। सो चंद्रमा पैदा हुए। फिर तीनों के गुण से संपूर्ण दत्तात्रेय पैदा हुए, जो आदि गुरु कहलाते हैं विष्णु संप्रदाय में। और महर्षि दुर्वासा पैदा हुआ। तो अनुसुईया माता के 3 पुत्र, चंद्रमा, दत्तात्रेय और दुर्वासा ऋषि। सो व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस? आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज ये है माता अनुसुईया। तो माता अनुसुईया कहाँ रहती थी? आपने अगर रामायण पढ़ी हो या ना भी पढ़ी हो, so you'll remember that Ramchandra ji, he left Ayodhya, he crossed the river, yeah, and he went southwards, right? So अयोध्या कहाँ है? अयोध्या उत्तर प्रदेश में। और जब वो वहां से निकल के आगे चले, कपिल ऋषि का आश्रम आया। फिर आगे चले तो अत्रि ऋषि का आश्रम आया। दंडकारण्य में अत्रि ऋषि का आश्रम आया। और अत्रि ऋषि के आश्रम में माता सीता को अनुसुईया माता ने ज्ञान दिया, पतिव्रत धर्म के बारे में, सतीत्व के बारे में ज्ञान दिया। अगेन इट इज ऑफ कोर्स मच वेरी कंट्रोवर्शियल इन द विमेन्स लिब ऑर्गेनाइजेशंस एक्सेट्रा, बट ज्ञान दिया। और उनको वस्त्र दिए और उनको पात्र दिया, खाना बनाने के लिए एक पात्र दिया जो कभी खाली नहीं होता, हमेशा भर जाता है। और वस्त्र दिए जो कभी पुराने नहीं होते, कभी गंदे नहीं होते, ऐसे वस्त्र दिए उनका वनवास पूरा करने। सो ज्योग्राफिकली जब आप उत्तर प्रदेश से नीचे की तरफ निकलेंगे तो मध्य प्रदेश आएगा। और मध्य प्रदेश में अनुसुईया माता का आज भी, टुडे ऑल्सो, आज भी वहां पर एक विहार है। विहार मतलब गार्डन है, मंदिर भी है। और वहां से मंदाकिनी निकलती है। जो रिवर मंदाकिनी है वो वहां से निकलती है, मध्य प्रदेश में निकलती है। और ऐसा बोला जाता है कि माता की उपासना के लिए, अनुसुईया माता की उपासना के लिए रोज गंगा जी वहां पर आती है, क्योंकि उनकी भक्ति इतनी थी, श्रद्धा इतनी थी, उनकी तपस्या इतनी थी कि उन्होंने माता गंगा से प्रार्थना की कि आप यहाँ पर पधारें, जिससे कि हमारी सेवा में
अर्चना में कोई ऑब्स्टिकल, व्यवधान नहीं आए। सो भगवान शंकर गंगा जी को लेके वहां पहुंचे। तो मंदाकिनी नदी जो है वो भगवान शंकर की जटाओं से वहां पर बहती है, क्योंकि भगवान शंकर स्वयं वहां पहुंचे थे, मध्य प्रदेश। अनुसुईया। तो अब मंदाकिनी के बनने में, यानी कि चित्रकूट के चित्रण में, हमने देखा संत जरूरी है, हमने देखा कथा जरूरी है, और इस संत और कथा के साथ साथ अनुसुईया भी जरूरी है, वरना वो वहां नहीं पहुंचेंगी। चित्रकूट में मंदाकिनी कैसे आएगी? चित्रकूट में गंगा कैसे आएगी? गंगा तो ऊपर बहती है ऋषिकेश से, हरिद्वार, हरिद्वार से बनारस, बनारस से बिहार, बिहार से आगे चल। यानी कि जो बाहर बहती हुई गंगा है, जो भगवान का बाहर बैठा हुआ स्थान है, उसको हमें अगर स्थान परिवर्तन करके, इफ वी वांट टू चेंज द लोकेशन ऑफ गॉड फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड अस, वी हैव टू क्रिएट चित्रकूट. Chitrakoot gets created because of Mandakini and one mountain, संत और कथा. और मंदाकिनी अंदर, यानी कि यहाँ इस चित्रकूट में, ये गंगा इधर क्यों आएगी? इधर तब आएगी जब अनुसुईया अपनी तपस्या से उनको बुलाएंगे. अब अनुसुईया का अर्थ क्या? क्या मतलब है अनुसुईया का? अनुसुईया मतलब जिसमें असूया ना हो, असूया वृत्ति होती है. भगवान कृष्ण भी गीता में उपदेश देंगे, आगे हम जब बात करेंगे गीता उपदेश की तो बोलेंगे कि असूया जिसमें भक्ति ना हो, जिसमें वैराग्य ना हो, जिसमें प्रेम ना हो, और जिसमें असूया ना हो, वहीं पर कथा की जानी चाहिए, वहीं पर भगवान विराजेंगे. तो असूया क्या होती है? असूया मतलब किसी के गुण में दोष निकालना, किसी के गुण में दोष निकालने की जो प्रवृत्ति है उसको असूया बोलते हैं. व्हेन यू फाइंड फॉल्ट्स और यू स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग somebody's गुड डीड्स और गुड नेचर, गुण को क्या बोलेंगे? गुड कैरेक्टर. अब आदत ही है हमारी, साफ सुथरी कोई चीज देख ही नहीं सकते. अगर साफ भी होगा कपड़ा तो उसमें हम गलती ढूंढेंगे. पूरी रामायण पढ़ के हमें अनुराग क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें लगेगा राम ने इसको निकाल दिया, सीता को बाहर, घर से बाहर निकाल दिया. ऐसा कौन पति होगा जो घर से बाहर निकाल देगा? हम्म. सो हमारे मन में, और ऐसे ही हम हर किसी के साथ करते हैं, गुण को गुण नहीं रहने देते, उसमें दोष खोजते रहते हैं. You deeply think about it. It's a very basal nature of every single human being. You meet a celebrity. You can't let that person be a celebrity. You'll keep trying to find a fault with that person. किसी का अच्छा गाना सुनो पुलकित, फिर क्या होगा? अच्छे पे नहीं रह सकते. Keep trying to find the fault in that person.
सो ये एक बहुत ही बेसल नेचर है असूया। और भगवान बोलते हैं कि भाई ये अच्छा प्रसाद जो है ना आपकी कथा का, खाने का, ये अच्छा प्रसाद उसको मत दो जिसके अंदर भक्ति नहीं है, जो भी ना जिसको खाना पसंद ही नहीं है उसको खाना देने का क्या फायदा है। उसको मत दो जिसको भूख नहीं लगी हुई, जिसका पेट भरा हुआ है उसको मत दो। जिसको खाना पसंद नहीं है उसको मत दो। और सबसे बड़ी बात, जिसको खाना खाते ही उल्टी होने वाली हो उसको तो पक्का ही मत दो। असूया वो जो खाना अच्छा खासा भोजन खा के उसको उल्टी करके निकाल दे, उसमें दोष निकाले, उसमें गलती निकाले। तो भोजन तो बड़ा सुंदर रहता है, खाना तो बहुत अच्छा रहता है। अच्छा सा खाना अगर आपके पास रखा हो और उल्टी किसी को अच्छी लगती क्या? उसको अच्छे से खाने को जो बर्बाद करके स्टिंकी बना के बाहर निकाल दे वो असूया। बात समझ में आई? असूया समझ में आया? सो जिसके अंदर असूया हो उसको कथा कभी नहीं सुनानी चाहिए, उसको भोजन कभी नहीं परोसना चाहिए। जिसको उल्टी होने वाली हो, जो इसका उल्टा ही मतलब निकाले, जो क्रिटिसाइज ही करे, जिसके मन में यही भाव रहे, उसके साथ कथा नहीं करनी चाहिए। आजकल ये सारा इंडियन न्यूज मीडिया तो भरा ही रहता है असूया से, सारे टाइम। अच्छा किसी को छोड़ ही नहीं सकते, दोष निकालना ही निकालना। सो ये असूया, एवरीबडी अंडरस्टैंड असूया? Yeah, it is a very basal nature. It is not something that is uh, there in one person and not there in another person. It's actually very widespread. It is there in every single human being. To the extent that they have ego, they will have asuya. एक बहुत सुंदर कहानी है। एक संत गए किसी के पास अ, कथा करने। तो उनको एक आदमी आया, बोला प्रभु मेरी माता बहुत बूढ़ी है, बहुत बुजुर्ग है और यहाँ से थोड़ी दूर पे रहती है, आप अगर चलें और उनको दर्शन देने की कृपा करें तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो कुछ टाइम होगा महात्मा के पास, तो वो चले गए। और वहां जाके आ, गांव की औरत थी। गांव मतलब रिमोट, एक सच्ची कहानी है, ऐसी कोई इसमें गलत बात नहीं है। गांव की औरत थी और रिमोट जैसे राजस्थान और मध्य प्रदेश के गांव होते हैं, वो बूढ़ी बूढ़ी औरत, बड़ी कुछ पढ़ी लिखी भी नहीं थी। आजकल ऐसा शायद कोई हो ही ना, थोड़ी सी 50-60 साल पुरानी कहानी है। तो गांव की औरत थी। उसने, जैसे हम लोग बोलते हैं ना चरण स्पर्श, तो जब महात्मा आए तो वो बोले स्वामी जी आपके मैं खर छूं। खर, खर बोलते हैं जो जानवर होते हैं, उनके जो पाँव होते हैं उसको खर खुर बोलते हैं, अलग अलग डायलेक्ट्स में। द पाए जो जिसका पाया सूप बनता है, वो पाए जो है, जो पाँव है जानवर के, जिसमें कि कोई फिंगर्स नहीं होते हैं। हाँ, नो फिंगर्स। सो नो टोज, जस्ट द हूफ ऑफ द, उसको खर बोलते हैं। तो वो बूढ़ी औरत ने बोला कि स्वामी जी आपके खर छूं। जैसे हम बोलते हैं पाए लागू या चरण स्पर्श, ऐसे वो बोली। पंडित जी को, स्वामी जी को गुस्सा आ गया। बोले ये क्या बोल रही है, ये तो मैं तो आदमी हूँ, मेरे घर थोड़ी होते हैं, हैं? ये क्या बोल रही है, पता नहीं है माता
ऐसे मत बोलो, ऐसे बोलने से तुम्हें पाप लगेगा। तो वो बूढ़ी औरत, वो इतनी सरल स्वभाव की थी, इतनी सरल स्वभाव की थी, बोले पाप तो हमें कैसे लगेगा स्वामी जी, हम तो किसी लायक ही नहीं है, हमें तो कुछ आता ही नहीं है। ये पाप वाप तो आप ही को लगेगा, हमें नहीं लग सकता स्वामी जी, हम तो किसी लायक ही नहीं है। तो इतना सरल स्वभाव, यानी कि ह्यूमिलिटी, जिसके अंदर ईगो हो, जैसे स्वामी जी के अंदर ईगो था, तो उन्होंने बोला पाप लगेगा। उसने तो अच्छे से बोला, अच्छे से पाँव छूने की कोशिश, खर बोला तो क्या फर्क पड़ा। पर उन्होंने वापस बोला कि तुम्हें पाप लगेगा। बुढ़िया ने बोला स्वामी जी इसके लायक भी नहीं है, पाप भी आप जैसे संतों को ही लगेगा। सोचा आशीर्वाद या कुछ दे रहे होंगे, बोले नहीं हम तो इसके लायक भी नहीं। सो जहां पर ईगो होता है, wherever there is ego, there is असूया। Where there is humility, there is अनुसूया। Make sense? Everybody with me? सो जहां असूया होती है वहां मंदाकिनी नहीं आती। जहां अनुसूया की तपस्या चाहिए, तब मंदाकिनी चित्रकूट में आएंगी। यानी कि असूया वृत्ति का नाश होना चाहिए। एनी क्वेश्चंस? असूया समझ में आया बेटा सबको? अनुसूया बनना पड़े उसके लिए क्या? बेसिकली ह्यूमिलिटी चाहिए। अच्छी चीजों को कलंक ना लगाएं हम। अच्छी चीजें जैसे हैं भगवान शंकर की तरह वैसे ही उनको ग्रहण कर लें ह्यूमिलिटी के साथ। उसमें अपना दिमाग का ऊपर नीचे ना करें तो ज्यादा बेटर है। तब मंदाकिनी जरूर आएगी और मंदाकिनी आके चित्रकूट में राम जी को साथ में लेके आएगी। गुड। तान्या पूरा सुना बेटा, आधा रह गया। नमस्ते दीदी। नहीं दीदी, वो पूरी स्टोरी शुरू से नहीं सुन पाई मैं। सॉरी, क्लास के टाइमिंग की कंफ्यूजन हो गई, मैंने मैंने तो मैसेज लेट की थी क्लास, फिर भी लेट हो गई। नहीं दीदी, 8:30 का आपने 5 मिनट्स और लेट बोला तो, पर मैसेज वाला नहीं पड़ा जिसमें जल्दी शुरू का मैसेज था। ओके। शालिनी बेटा पूरी सुनी तूने? तू भी रास्ते में थी। हाँ, पूरी सुनी दीदी। अनुसुईया समझ में आया बेटा? हाँ दीदी, पूरा समझ में आया। सो अब चित्रकूट के लिए 3 चीजें चाहिए। एक मंदाकिनी, दूसरा पर्वत, और तीसरी माता अनुसुईया। तब चित्रकूट बनेगा, तब राम जी आएंगे। ऑल राइट, आर देयर एनी क्वेश्चंस, एनी थॉट्स, एनी क्वेश्चन? If you don't have any questions, we'll stop here today. I started late. I don't want to go on for too long. And I'll hopefully see you next week, God willing. Thanks everybody for making it to class today. All right. Have a nice week. Next time there will be a revision. राम भद्राचार्य जी बता ही दिया मानवी ने। सो वो संत की कहानी बहुत ही, मतलब उन्होंने जो बोला, मैं ऑलमोस्ट सारे समय ही याद रखती हूँ कि भगवान हमें दर्शन ना दें, भगवान हमें देख लें बस। अगली बार वीआईपी लाइन में, वैसे वीआईपी लाइन में लगने का कोई फायदा नहीं है। इतनी जल्दी दर्शन हो जाते हैं, पाठ पूरा नहीं होता। तो मैं जनरली प्रेफर नहीं करती।
मगर अब तो बिल्कुल ही वीआईपी लाइन में कभी नहीं जाऊंगी मोनिका। तू भी कोशिश मत कर, जनरली चली जा। मैं वही सोच रही थी, मैंने कहा मैं भूल ही गई उसको अप्लाई करना। फॉर 1 year आई वाज सिटिंग ऑन इट। आई थिंक दैट्स अ गुड थॉट। जनरल चले जाओ, आराम से पाठ करते रहो, जब बारी आए दर्शन करके आ जाओ। पाठ करते रहो, भगवान का भजन करते रहो। भगवान ने जब देखना है, हमारा काम ही क्या है? वी जस्ट हैव टू शो अप, वी जस्ट हैव टू डू आवर वेरी बेस्ट। देखने का काम तो उन्हीं का, आगे आने का काम उन्हीं का, दर्शन का काम भी उन्हीं का है, हमारा तो कुछ काम ही नहीं। जिसने आगे से दर्शन कर लिया उसको कौन सा भगवान ने देख लिया? सो मैंने बहुत अच्छी कहानी है वो, मेरे को बहुत प्यारी लगती है। Alright guys, have a nice week. I'll see you next week. Take care. Namaste. नमस्ते Namaste दी। दीदी। Mhm.